آپ کو بتاتے جائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے رمضان پیکیج کا اعلان کر دیا۔ 22.5 ارب روپے کی منظوری، 60% آبادی کو 5,000 روپے نقد دیے جائیں گے۔ 45 لاکھ خاندان رمضان پیکیج سے مستفید ہوں گے۔ محکمہ زکوٰۃ 1,10,000 غریب خاندانوں کو 14,000 روپے دے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت رمضان المبارک سے متعلق بڑے فیصلے۔ مراد علی شاہ نے رمضان پیکیج کا اعلان کر دیا۔ 22.5 ارب روپے کی منظوری دے دی گئی۔ 60% آبادی کو 5,000 روپے نقد دیے جائیں گے۔ 5,000 کی رقم بینک کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ 45 لاکھ خاندان رمضان پیکیج سے مستفید ہوں گے۔ محکمہ زکوٰۃ 1,10,000 غریب خاندانوں کو 14,000 روپے دے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کمشنر کراچی کو آج سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت کر دی۔ اجلاس کے دوران مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ مقررہ قیمتوں پر اشیاء کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ رمضان پر پرائس کنٹرول کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کمپلین سینٹر قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے انتظامات کا خود بھی جائزہ لینے کا اعلان کر دیا۔ اجلاس کے دوران سحر و افطار میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اجلاس میں میئر، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے رمضان پیکیج کا اعلان کیا۔ 22.5 ارب روپے کی منظوری دی ہے اور 60% آبادی کو 5,000 روپے نقد دینے کی بھی منظوری دی۔ 45 لاکھ خاندان رمضان پیکیج سے مستفید ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے رمضان پیکیج کا اعلان کیا ہے اور 22.5 ارب روپے کی منظوری دی ہے۔ اجلاس کے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے عاجز جمالی سے۔ عاجز، آگاہ کیجیے گا کہ اجلاس میں اور کیا کیا بڑے فیصلے کیے گئے ہیں؟ جی ہاں، یہ بہت بڑا پیکیج دیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے۔ 22.5 ارب روپے کا پیکیج ہے جو رمضان پیکیج کے نام سے ہوگا اور یہ نقد رقم پہ مشتمل ہے۔ 5,000 روپے یعنی نقد دیے جائیں گے ماہ رمضان کے دوران اور یہ 45 لاکھ خاندانوں میں یہ رقم تقسیم ہوگی۔ جو بتایا جا رہا ہے بریفنگ میں وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا تقریباً 60% آبادی بنتی ہے صوبہ سندھ کی جن میں اس رقم کی تقسیم ہوگی۔ رمضان شریف کے حوالے سے اور بھی اہم فیصلے ہوئے ہیں اجلاس میں، جس میں خاص طور پہ ذخیرہ اندوزی اور مہنگائی کا جو مسئلہ ہے اس پہ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ پرائس لسٹیں جاری کر دی گئی ہیں۔ چونکہ اس اجلاس میں صرف کراچی کا کمشنر اور کراچی کے اعلیٰ حکام نہیں تھے لیکن تمام ڈویژنل کمشنرز اور آئی جیز جو تھے وہ آن لائن موجود تھے۔ تو پورے صوبہ سندھ کے کمشنر اور آئی جیز کو صوبہ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ ہدایت دی ہے کہ صوبے بھر میں جو پرائس لسٹیں ہیں، جو اشیاء خورد و نوش کی فہرستیں ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا آج سے ہی اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ کمشنر کراچی کو یہ ہدایت دی ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہ وہ آج سے ہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان پرائس لسٹوں پر عمل ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود بھی مارکیٹوں کے دورے کریں گے اور وہ خود بھی جو ہے مختلف بازاروں میں جائیں گے۔ آج سے ہی یہ دورے بھی شروع کریں گے۔ کہیں بھی اگر یہ سلسلہ جس پہ عمل نہیں ہوا، لسٹوں پہ مہنگی اگر اشیاء کے فروخت ہوئی ہے تو پھر ان لوگوں کے خلاف کارروائی صرف نہ ہوگی بلکہ افسران کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا پیکیج دیا گیا ہے ماہ رمضان کے حوالے سے سندھ حکومت کی جانب سے۔ جی عزیز، سندھ اسمبلی کا اجلاس آج 3 بجے ہوگا اور اجلاس میں 2 ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ اس بارے میں کیا بتائیں گے اب آپ؟ جی ہاں، سندھ اسمبلی کا اجلاس شیڈول کے مطابق آج سپہر 3 بجے اس کا وقت ہے۔ ایجنڈا جاری ہو گیا ہے آج کے سیشن کا۔ ایجنڈا کے مطابق اس میں حلف برداری شامل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 نئے ارکان منتخب ہوئے تھے۔ یہ سینیٹر تھے جنہوں نے حلف نہیں لیا تھا، نثار احمد کھوڑو اور جام مہتاب ڈہر۔ ان دونوں نے سینٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب سندھ اسمبلی میں آج وہ حلف لے رہے ہیں۔ 3 اور ممبران بھی تھے، 2 خواتین اور 1 اقلیتی جو ریزروڈ سیٹیں تھیں، لیکن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے یہ آج حلف نہیں لیں گے۔ البتہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جنرل نشستوں پہ کامیاب یہ دونوں جو ممبران ہیں وہ حلف لیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آج سے جو سندھ اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پہ صدارتی الیکشن کا تسلسل ہے۔ 9 مارچ کو صدارتی الیکشن ہے، اس کی تیاریاں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تمام ارکان سندھ اسمبلی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آج رات بلایا ہے اور ان کے اعزاز میں وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک عشائیے کا اہتمام کیا ہے۔
बाकायदा सदारती इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हिकमत अमली बनाएगी और तमाम अरकान को बताएगी कि किस तरह वोटिंग का हिस्सा बनाए। ज़राए कह रहे हैं कि इस इजलास से बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी भी खिताब करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए इस्लामाबाद से। तो ये तमाम तैयारियां सदारती इलेक्शन के लिए हैं जिसका आज 3 बजे इजलास हो रहा है। जी, आज इजलास होने जा रहा है जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अजीज़ जमाली। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की वोटर कॉरपोरेशन के दफ्तर आमद है और इस हवाले से भी आपको बताएंगे। अजीज़ जमाली, शुक्रिया। नाज़रीन, MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की वोटर कॉरपोरेशन के दफ्तर आमद है और अब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। उनमें कैसे जाएगा? उसका कोई निज़ाम नहीं। उस निज़ाम को कि जिससे कराची तक पानी आ जाए K4 का, और वो फिर बल्दिया टाउन जाए, वो फिर औरंगी टाउन जाए, वो फिर सुरजानी जाए, वो लियाकताबाद जाए, वो लियारी जाए, वो क्लिफ्टन जाए, वो गुलशन इकबाल जाए, वो लांडी कोरंगी जाए, उसके उस तक पहुंचाने वाले जो प्रोजेक्ट है उसको कह रहे हैं ऑगमेंटेशन। मतलब ये कि कराची के इंटरनल गलियों में रोडों पे पानी की लाइनें डालेंगी, जब जाकर K4 का पानी लोगों के घरों तक पहुंचेगा। ये समझ में आम लोगों के समझाने के लिए ये वाली बात करूं तो ये 75 अरब रुपए, तो जहां K4 का काम हो रहा है एट द सेम टाइम, और उसकी डेट क्या है? जून 2025। और हमें बताया ये जा रहा है कि जून 2025 में भी वो कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी सिर्फ 40 अरब रुपए लगे हैं उसके ऊपर। तो तकरीबन 30% काम हुआ है, 70% काम बाकी है। और बताया ये जा रहा है कि वफाक से, चूंकि ये वफाकी प्रोजेक्ट हो गया पूरा 100%, वफाक से पानी के इस K4 के पैसों की रिलीज का मसला है। इनके पास, वापदा के पास काम करने की कैपेसिटी है, काम करने से मुराद पैसे खर्च करने की कैपेसिटी है, लेकिन पैसे पीछे से आने चाहिए। हम भी अपना रोल प्ले करेंगे, आपके जरिए आवाज लगा रहे हैं कि भाई कराची के प्रायोरिटी देकर K4 की फंडिंग तेज की जाए। इसको 2025 अगर डेट है 2025 की, तो 2025 में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, उससे 2-4 महीने पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए काम। इसलिए कि अब तो वहां पर वो नहीं बन रहे, कैनाल नहीं बन रहे। कैनाल बनने में टाइम ज्यादा लगता है। अब तो पाइपलाइन डाल रहे हैं, तो पाइप तो भाई इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको इंपोर्ट करके डालना है। पाइप डालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, कैनाल में ज्यादा टाइम। तो अब इसमें टाइम का मसला नहीं है, इसमें पैसों का मसला है। तो ये पैसे जो है वो आने चाहिए तेजी से। लेकिन इसमें एक और मसला है, वो ये कि कोटरी से किंजर लेक तक की भी एक लाइन डालनी है, जिसको इरिगेशन डिपार्टमेंट ने डालना है। वो 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। 260 मिलियन गैलन पानी वहां से किंजर लेक आना। अब ये नई बात पता चली हमें, वो भी 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कि एक्निक अप्रूव है, बताते हैं। अगर वो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कोटरी बैराज से किंजर लेक तक वो लाइन नहीं डाली, वो काम नहीं किया, वो कैनाल नहीं पहुंच, तो फिर ये लाइन K4 कंप्लीट होने के बाद भी उससे 260 मिलियन गैलन पानी नहीं आएगा। ये नई बात है, ये हमें इससे पहले इस वाली बात का नहीं बताया गया। ये आज की ब्रीफिंग में, तो हम उसके लिए भी कोशिश हम अब करेंगे कि भाई ये सारे काम, KB फीडर की लाइन डलना, K4 की लाइन को कंप्लीट होना और कराची में ऑगमेंटेशन का काम होना, ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। इसमें से कोई एक काम भी रह गया तो पानी लोगों के घरों में नहीं पहुंचेगा। ये तीनों काम इकट्ठे होने, जब जाकर कराची में नया पानी आ पाएगा, जब जाकर कराची में 260 मिलियन गैलन पानी आ पाएगा, जिसकी बहुत अशद जरूरत है। ये K4 भी मैं अपने जमाने में 2008 में, जब हमने 2007 में K4 K3 कंप्लीट किया है, तो K4 अल्लाह ताला ने मेरे जमाने में कंसीव करवाया मेरे हाथों से 2008 में। आप सब लोग इसके गवाह हैं। उसके ऊपर काम नहीं किया गया, 2014-15 में जाकर उसके ऊपर काम शुरू किया गया, और आज उस पर भी तेजी से काम नहीं हुआ। तो करते आज ये प्रोजेक्ट जो है वो 300 अरब रुपए का हो गया। इसमें से 50 मेगावाट का जो है वो पावर प्लांट भी लगना है, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो ओवरऑल मिलाकर 300 अरब रुपए का प्रोजेक्ट हो गया। दूसरी बात, जो कराची में 2 सोर्सेज है ना,
ایک تو کنجر لیک سے آپ پانی لیتے ہیں اور ایک ہب ریزروائر ہب ڈیم سے آپ کا پانی آتا ہے. جو ہب ڈیم کا پانی ہے وہ جو 100 ملین گیلن پانی آتا تھا وہ 100 ملین گیلن پانی آپ نہیں. مصطفیٰ کمال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بلٹن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹروں کو وظیفہ نہ دینے کا کیس. میئر کراچی مرتضی وہاب توہین عدالت کے نوٹس پر جواب جمع کرانے سندھ ہائی کورٹ پہنچے. آپ کو بتائیں کہ عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹروں کو وظیفہ نہ دینے کا کیس ہے اور کیس کے حوالے سے مزید اپڈیٹس لیں گے ہمارے نمائندے ممتاز جمالی سے. ممتاز بتائیے گا. بالکل سندھ ہائی کورٹ کراچی میں بیرسٹر مرتضی وہاب جو کراچی کے میئر بھی ہیں ان کے خلاف شہید عباسی اسپتال کے ڈاکٹروں کے وظیفہ نہ دینے کیس میں توہین عدالت کے نوٹس کا معاملہ ہے. گزشتہ سماعت پر عدالت نے میئر کراچی مرتضی وہاب سمیت دیگر کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے تھے. اسی توہین عدالت میں پیش ہونے کے لیے آج مرتضی وہاب جو ہے وہ عدالت آئے اور انہوں نے جو ہے اپنا ایفیڈیوٹ بھی جمع کرایا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر عدالت میں پیش ہوں گے اور توہین عدالت کے نوٹس میں عدالت میں پیش ہو کر جواب جمع کرائیں گے. یہ گزشتہ سماعت پر عدالت نے جو ہے عباسی شہید اسپتال میں ڈاکٹروں کو وظیفہ نہ دینے کے خلاف میئر کراچی مرتضی وہاب سمیت دیگر کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے تھے. جی میئر کراچی مرتضی وہاب نے سندھ ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کس سلسلے میں آئے؟ عدالت تو یار میں ساری زندگی آیا ہوں. وہ وکالت کی حیثیت سے آئے, اب میئر ہیں آپ. اب ایک کیس کے اندر کنٹمپٹ کا نوٹس تھا تو پہنچ آیا تھا, اس کا جواب ایفیڈیوٹ کے لیے میں آیا تھا. انشاءاللہ وہ جمع کرا دی. سر آپ کے شہر کی جو مخالف جماعتیں اب وہ واٹر بورڈ مینجمنٹ سے مل رہی ہیں, تو پانی کی تقسیم اور تفصیل کا جو کام ہے وہ نظام ہے کس کے ہاتھ میں؟ آپ کچھ نہیں کریں. آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. شہر کی مخالف جماعتیں بالکل یہی میرا پوائنٹ ہے, وہ شہر کی مخالف ہے, میری مخالف نہیں ہے. نہیں, سیاست شہر میں جو سیاست کرتے ہیں سوال صحیح کر دیا آپ نے. شہر میں جو سیاست ہے اس میں مخالف ہے. انشاءاللہ خدا خیر کرے گا اور اس شہر کے معاملات کو ہم ہی ٹھیک کر کے دیں گے. پانی کی جو تقسیم اور ترسیل کا کام ہے وہ آپ کا ہے یا دوسری جماعتوں کا ہے؟ نیچرلی حکومت کا ہے, ہمارا ہے, لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت ہم سے ملنا چاہتی ہے, ہمارے افسران سے ملنا چاہتی ہے, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں افسران ملیں ان سے اور جہاں جہاں لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں, بالکل مسائل حل کیے جائیں گے. سٹی کونسل کا اجلاس آج دوپہر 2:30 بجے ہوگا. اجلاس میں 10 سے زائد قراردادیں پیش کی جائیں گی. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بلدیہ عظمی کراچی کے اسپتالوں کی سروسز میں بہتری لانے کی منظوری لی جائے گی. بلدیہ عظمی کراچی کے پارکوں کی تزئین و آرائش اور سولر سسٹم نصب کرنے کی منظوری لی جائے گی. محکمہ چارج پارکنگ بلدیہ عظمی کراچی کو درج سفارشات کے مطابق پارکنگ فیس وصول کرنے کی منظوری لی جائے گی. بلدیہ عظمی کراچی کے شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ میں قائم پروگرام آفیسر کی آسامی اپ گریڈ کرنے کی منظوری لی جائے گی. سٹی انسٹیٹیوٹ آف امیج مینجمنٹ کے موجودہ ایمپریسٹ اکاؤنٹ کی رقم 20,000 سے بڑھا کر 25,000 روپے کرنے کی منظوری لی جائے گی. عباسی شہید اسپتال کے شعبہ اطفال کا نام وسیلہ جہاں شعبہ اطفال بلدیہ عظمی کراچی کے نام سے موسوم کرنے کی منظوری لی جائے گی. بلدیہ عظمی کراچی میں پیش امام کی اسامی میں ترمیم کی منظوری لی جائے گی. شہر کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو تمغہ کراچی کے ساتھ نقد انعام کی دینے کی منظوری لی جائے گی. ڈپٹی میئر سیکریٹریٹ کے ایمپریس اکاؤنٹ کی رقم 50 بڑھا کر 75,000 کی منظوری لی جائے گی. کراچی میں ڈاکو بے لگام ہو گئے. کورنگی ویٹا چورنگی کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا. مقتول فیاض کورنگی 3.5 نمبر ایس ٹی ایریا کا رہائشی تھا. لواحقین کے مطابق فیاض اور اس کے دوست کو ڈاکو نے مزاحمت نہ کرنے پر بھی گولیاں ماری. مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے شاہ حسیب حسین سے. جی بالکل, میں کورنگی صنعتی ایریا میں موجود ہوں جہاں گزشتہ رات فیاض نامی نوجوان کو جو ہے قتل کیا گیا تھا. مقتول کے ورثہ میرے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب موجود ہیں جو ان کے بڑے بھائی ہیں. یہ بتائے گا کہ فیاض کے کتنے بہن بھائی تھے, کتنے بچے تھے, کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ ہم 6 بھائی ہیں, ایک بہن ہے ہماری. سب سے بڑا میں ہوں. فیاض تیسرے نمبر پہ تھا. اس کے 4 بچے ہیں, 3 بیٹیاں 1 بیٹا. ویٹا چورنگی پہ ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا. ڈکیتوں نے ان کو گولیاں ماری ہیں 3. انتہائی افسردہ موقع ہے یہاں پر اور اس وقت جو ہے لواحقین غمزدہ ہیں. اس وقت ان کے ہمارے ساتھ کزن بھی موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. یہ بتائے گا کہ آپ لوگ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس طریقے کی واردات بڑھتے جا رہی ہیں. سر مطالبہ تو ہمارے اہل اقتدار اور مسندوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو SHO SP صاحب, IG صاحب, اور ان سے مطالبات تو پوری کراچی کر رہی ہے. آئے دن لاشیں گرتی ہیں,
रोज़ उठा रहे हैं। हर माँ अपना फयाज उठा रही है, बहन अपना भाई खो रही है। तो हमारी ये गुजारिश है कि खुदारा कराची के ऊपर तवज्जो दी जाए और कराची का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, कराची की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इसके अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं है, ताकि कोई और माँ फयाज ना उठाए, कोई और बहन अपना भाई ना खोए, कोई भाई अपना भाई ना खोए। जी बिल्कुल, पहले देखा जाता था कि सिर्फ डाकू जो है सिर्फ लूट मार किया करते थे, लेकिन अब साथ में जाने लेने लगे हैं। रवां साल अगर बात की जाए तो अब तक 35 अफराद डाकुओं की गोलियों के नज़र हो चुके हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। पुलिस जराइम में रोकने में नाकाम हो चुकी है और दावे करती है कि हम CCTV कैमरे लगा रहे हैं, हम जो है रूट पर जो है पुलिसिंग बढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से गश्त भी जो है बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस जो है बेलगाम हो चुके हैं। जी, कराची में 2 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की वारदातें 15,000 से तजावुज़ कर गई हैं। CPLC के अदाद-ओ-शुमार City 21 ने हासिल कर लिए। इसी पर तफसीलात जानेंगे मेराज अख्तर से। मेराज, इस अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताइएगा। देखिए, बिल्कुल CPLC के अदाद-ओ-शुमार जो है वो हासिल हुए हैं। इसके मुताबिक जो है कराची में लूटमार के वाक़े से तसलसल है जो वो मुसलसल बरकरार है और 2 माह के दौरान यानी कि जनवरी और फरवरी के महीनों में अब तक 15,000 से ज़ायद जो है वारदातें वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। मई फरवरी में होने वाली वारदातों का रिकॉर्ड सामने आ गया है, जिसमें सिर्फ इस माह में यानी कि फरवरी के महीने में 7,249 वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए। जनवरी की निस्बत फरवरी 2024 में गाड़ी छीनने की वारदातों में 94% इजाफा हुआ है और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें भी 4% से बढ़ गई हैं और 901 वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। तो इस तरह मजबूत तौर पर जो है फरवरी में शहरियों से 1659 मोबाइल फोन छीने गए हैं और 4,211 मोटरसाइकिलें चोरी की गई हैं। इसके अलावा असले के जोर पर 33 गाड़ियां छीनी और 135 गाड़ियां चोरी की गई हैं। 2 माह में कराची वाले मजबूत तौर पर 10,429 मोटरसाइकिलों से महरूम हुए हैं। शहरियों की 348 गाड़ियां और 4,274 मोबाइल फोन जो है वो भी चोर डाकू ले रहे हैं। तो CPLC का रिकॉर्ड सामने आया है, लेकिन इसके साथ साथ जो है पुलिस एक ही राग लप रही है कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाया जा रहा है और मुलजिमान की गिरफ्तारी कर रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 2 माह के दौरान में अब तक 34 अफराद बल्कि 35 अफराद, एक रात को भी मर्डर हुआ है, 35 अफराद शहर कराची में जो है वो डाकुओं का निशाना बन चुके हैं और फायरिंग से जाबाज हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। जी, अभी तक मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया मेराज अख्तर। सिंध में अमन व अमान और स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती सूरत हाल। ज़राए के मुताबिक सिंध पुलिस में IG सिंध समेत दीगर अफसरान की तब्दीली का फैसला। ज़राए के मुताबिक गुलाम नबी मेमन को IG सिंध तैनात किए जाने का इम्कान है। जावेद आलम को चेयरमैन एंटी करप्शन तैनात किए जाने का इम्कान है। सूबे भर में एडिशनल IG, जोनल DIGs, SSPs के तबादले मुतवक्की हैं। रमज़ान से कबल मुख्तलिफ थानेदारों के तबादले शुरू कर दिए गए। थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, एयरपोर्ट थाना, नॉर्थ नासिमाबाद थाना, SHO गुलबहार, SHO जौहराबाद तब्दील कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर अब्दुल रसूल SHO थाना नॉर्थ नासिमाबाद, सब इंस्पेक्टर अमजद कयानी SHO गुलबहार तैनात, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद खान SHO जौहराबाद, पुलिस इंस्पेक्टर पीर शबीर SHO रसाला तैनात और राजम राजपुर को SHO क्लिफ्टन तैनात कर दिया गया। कोरंगी में डाकुओं की फायरिंग से जहां बाग लारेब के अहल खाना गम से निढाल। SSP इन्वेस्टिगेशन आसिफ रजा बलोच का कहना है कि लारेब का फ़ोन मिल गया, एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से, जो इस वक्त लारेब के वालिद के साथ मौजूद हैं। अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हुदूद में 2 दिन कबल जो है वो लारेब को कत्ल किया गया था डाकुओं के हाथों, और इस वक्त भी जो है वो घर में सोग का समा है। लारेब के वालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि पुलिस इनके साथ तावन कर रही है या नहीं कर रही। मुझे ये बताइएगा, हम देख रहे हैं इस वाक़े को 2 दिन गुजर गए, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने नोटिस लिया था लारेब के कत्ल का। क्या पुलिस आपके साथ तावन कर रही है या नहीं कर रही, आप बताइएगा। 2 दिन हो गए। तो काफ़ी लोग रहे हैं, पुलिस के काफ़ी लोग आ रहे हैं और काफ़ी उम्मीदें दिला रहे हैं। अभी अल्लाह के हुक्म से पता चला है कि मोबाइल भी रिकवर हो गया है, अब आगे देखें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डाकू जब छीना झपटी कर रहे थे तो क्या लारेब अकेला था और क्या डाकू मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हुए थे? बस एक दूसरा बच्चा साथ था, उसकी जेब से पैसे वगैरह थे वो लिए, उसके बाद उससे मोबाइल छीना और गोलियां मारी और जी हाँ, और गोलियां मारी और चले गए। अच्छा, आपको क्या
क्या लगता है कि लारैब से मोबाइल जिस छीना गया था और वो लेकर चले गए थे, पुलिस का कहना है कि हमने लारैब के मोबाइल को रिकवर कर लिया है और एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया है। कल रात में भी जो है वो एक फयाज नामी नौजवान को इसी थाने की हदूद में कत्ल कर दिया, एक और जनाजा उठाए घर से। जनाब, ये जब तक हमारे इदारे पूरा अपनी तरफ से कोशिशें नहीं करेंगे तो जब तक ये माएँ अपने मासूम लाल खोती रहेंगी, बाप अपने जवान बच्चों का कंधा उड़ाते रहे, जनाजा उड़ाते रहे। मेरा बच्चा तो पढ़ता था अभी, मेरी ऑटो पार्ट्स की शॉप है औरंगी नासिर जंप पे जी, BBA फाइनल में था। बता, हम देख रहे हैं कि डाकू बेलगाम है इस एरिया के अंदर। डकैत आते हैं, छीना झपटी करते हैं, मार कर फरार हो जाते हैं और लारैब का बाप आज भी इंसाफ का मुंतजर है कि डाकुओं ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। कोई भी शहरी डाकुओं से नहीं है कराची में। जी आपको बताते जाएं कि 18 साल लड़की की बाजियाबी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत की गई है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि तहकीकात से मालूम हुआ है कि लड़की ने निकाह किया है और किसी बंगले में काम करती थी। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आजकल नौजवान लड़कियों के पास मोबाइल हैं, किसी से तो बात करती होगी। केस के हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा केस के हवाले से, अहम समाअत के हवाले से। आज सिंध हाई कोर्ट कराची में 18 साल लड़की समेत दीगर की बाज़ाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लापता लड़की की वालिद जो है वो अदालत में पेश हुए। तफ्तीश अफसर ने कहा कि मुतअद्दिद JITs के इजलास हुए हैं, मुख्तलिफ इदारों को खतूत भी इरसाल कर दिए हैं, ट्रैवल हिस्ट्री भी हासिल की है। इससे मालूम हुआ है कि लड़की ने मुल्क से बाहर सफर नहीं किया है, लड़की जो है हयात है और मुल्क में जो है कहीं पर मौजूद है। जिस तफ्तीश अफसर का मज़ीद ये भी कहना है कि लड़की की तस्वीर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी शाया किया है और तहकीकात से मालूम हुआ है कि लड़की ने निकाह किया और किसी बंगले में काम करती थी। आज इस पर जस्टिस नेमतुल्लाह कोर्ट ने रिमार्क किए कि आजकल नौजवान लड़कियों के पास मोबाइल है, किसी से तो बात करती होंगी। लड़की के वालिद की समाअत के दौरान अदालत में उन्होंने आओ बता की। उनका कहना है कि मेरी बेटी ने निकाह नहीं किया, ये सब झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अगर निकाह किया भी है तो उसे ढूंढकर अदालत में पेश किया जाए। लड़की की गुमशुदगी का मुकदमा दरख्शां थाने में जो है वो दर्ज है, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर DIG से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने JITs और PTS सेशन करने की हिदायत कर दी है और दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। गवर्नर सिंध से सऊदी अरब के आला सतही के वफ़द की मुलाकात हुई है। वफ़द की क़यादत सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफुल सईदुल मालिकी कर रहे थे। दो तरफ़ा ताल्लुका, हुजाज कराम और ज़ायरीन को मज़ीद सहूलियात की फराहमी, रोड टू मक्का और दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। कामरान फिसोदी बोले, सऊदी हुकूमत की जानिब से हुजाज और ज़ायरीन के लिए सहूलियात की फराहमी काबिल तहसीन है। सऊदी सफ़ीर बोले, पाकिस्तानी हुजाज कराम को मज़ीद सहूलियात देने के लिए कोशा है। महकमा तालीम सिंध के नए तालीमी साल 2024 से 25 में तब्दीलियाँ, शेड्यूल तैयार कर लिया गया। स्कूल और कॉलेजों का तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। नर्सरी से तीसरी जमात तक के तलबा को बगैर इम्तिहान प्रोमोट करने का फैसला हो गया है। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक 4थी से 8वीं जमात के तलबा के इम्तहानात 15 अप्रैल से 27 अप्रैल तक होंगे। 9वीं और 10वीं जमात के बोर्ड के इम्तहानात मई में लिए जाएंगे। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात मई के आखिरी हफ्ते में होंगे। मैट्रिक के नताइज का ऐलान 31 जुलाई तक करने का फैसला किया गया। इंटर के नताइज का ऐलान 31 अगस्त तक किया जाएगा। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। मौसम सरमा की तातीलात 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दी जाएंगी। कमिश्नर कराची के सरकारी निर्खनामे को होल सेलर्स ने हवा में उड़ा दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काबिश मेमन से। बिल्कुल देखिए, कमिश्नर कराची ने प्राइस लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन हमने देखा माजी में भी ये प्राइस लिस्ट जारी की गई, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। वज़ीर आला सिंध ने बाकायदा तौर पर इस हवाले से कमिश्नर कराची को हिदायत कर दी कि शहर भर में जितनी भी रिटेल होलसेल की सतह पर जो सरकारी निर्खनामा है उस पर अमल दरामद करवाया जाए। और इस हवाले से कमिश्नर कराची ने भी जो ज़िले इंतजामिया उसको बाकायदा तौर पर हिदायत जारी कर दी है। लेकिन होलसेल की सतह पर देख रहे हैं जो दालें, चावल हैं और साथ साथ चीनी की बात की जाए तो वो सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, जायद कीमत पर फरोख्त हो रही है। दुकानदारों के अपने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरे साथ एक होलसेलर मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा, हर साल रमज़ान में देखते हैं महंगाई का तूफान आता है, इस बार रेट लिस्ट जारी कर दी कमिश्नर ने, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। क्या वजह है, दुकानदार क्यों जो है वो सरकारी रेट पर नहीं बेच पाते? अमल दरामद कैसे होगा जब हमें कॉस्ट ही वो नहीं पड़ती जो कमिश्नर ने लिस्ट जारी की है। जैसे चीनी की 123 रुपये जारी की है तो मील से ही हमको 134 पे पड़ती है,
तो हम ज़ाहिर सी बात है 1 रुपया अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के बेचेंगे ना, 10 रुपया तो नुकसान में नहीं बेचेंगे। तो ये जो लिस्ट जारी की है, पहले जाके बैंक से वो रिसर्च करें कि वो चीनी हमें क्या रेट देते हैं, क्या रेट नहीं देते हैं। अभी ज़ाहिर सी बात है हम नुकसान तो नहीं करेंगे ना, अभी हमारे रोज़ की 250-300 कट्टे निकलते हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हिसाब से तो अगर हम 10 रुपया किलो नुकसान करेंगे तो हमारे तो इसे 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान है। तो इस रेट पे तो हमको वारा नहीं है, नुकसान है, तो फिर हम चीनी नहीं मंगवाएंगे। बिल्कुल देखें, जो होल सेलर्स हैं उनका कहना है कि नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ज़बरदस्ती की जाती है, छापे लगाए जाते हैं दुकानों में, जो कि आज वाज़ह तौर पर हिदायत कर दी गई है, तो उनका कहना है कि छापे लगाने से बेहतर है स्टेक होल्डर्स की कमेटी बनाए, एसोसिएशन को मिलाए, जो होल सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको मिलाए और जो एक जो मार्जिन है उसको सेट करें ताकि उस पर अमल दरामद भी हो सके। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट को रिटेलर्स ने भी रोन डाला। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरहान खान से। जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल रखने के लिए जो वो रेट लिस्ट बाकायदा जारी कर दी गई है। इस वक्त जो है वो मैं रनशुलैंड मार्केट के अंदर मौजूद हूँ, लेकिन रेट लिस्ट जारी होने के बाद जो है वो रेट लिस्ट पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। इस वक्त जो है हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। सर मुझे बताइएगा, रेट लिस्ट जारी तो हो जाती है लेकिन अमल दरामद नहीं होता, उसकी क्या वजूहत है? इसकी वजह ये कि यहाँ लेट पहुँचते और वो बंदे यहाँ पहुँचते नहीं है। जो जैसे कमिश्नर जो हमें लिस्ट इशू करता है ना, जो उस रेट के मुताबिक हमारे पास कोई रेट नहीं होता। मार्केट में अगर ज़्यादा है तो हमें यहाँ होता है कम बेचो, मगर हम नहीं बेच सकते क्योंकि मार्केट में रेट ज़्यादा, हम 2-3 रुपए पे काम करते हैं, क्या समझे। और अभी हमारे पास जो लिस्ट है, जो अभी मैंने आपको बताई, वो है पुरानी, पिछली। अभी तक जो एजेंट आता है ना देने, तो वो हमारे पास नहीं पहुँचा है। मार्केट की कंप्यूटराइज बिल जो है ना, ये कमिश्नर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? बोलते जी इसमें फ़र्क आ रहा है रेट के अंदर, वो लोग कुछ रेट बोलते हैं, हमारे यहाँ कुछ रेट होता है। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया आपको जो वो पीछे से जो वो मार्केट से चीज़ें महंगी आती है, जिसकी वजह से आप भी जो है वो आगे महंगी बेचने में मजबूर हैं। तो कमिश्नर कराची जो है वो रेट लिस्ट जो है वो होल सेलर और रिटेलर से तय करके जो है वो जारी नहीं किया? नहीं, उन लोग नहीं करते, वो पता नहीं क्या मामला है उनके, क्या समझे। तो वो हमारी लिस्ट में और उनकी लिस्ट में फ़र्क आता है, और हमारा 2-3 रुपये पे काम है सारा, समझे। जैसे कि कमिश्नर कराची ने आज भी जो है वो इजलास के अंदर कहा है कि अगर रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त नहीं गई तो बाकायदा एक्शन लिया जाएगा और छापा मारा जाएगा। तो अगर छापा मारा जाए तो उस सूरत में रिटेलर्स क्या करेंगे? क्या करेंगे? जायज़ा बंद कर देंगे काम को अपने, यही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है। हमें आगे से अगर कोई चीज़ महंगी मिलेगी तो हम किस रेट में बेचेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो एक दुकानदार भी हमारे हमारा मौजूद थे, रिटेल मार्केट के अंदर हम मौजूद थे। उनका यही मौक़िफ़ है कि जब पीछे से हमारे को अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो ज़्यादा मिलेंगी तो हम भी जो है वो आगे ज़ाहिर है 1-2 रुपये रख के महंगी बेचेंगे। कारोबार चलाने के लिए जो वो 1-2 रुपये रख कर मुनाफा जो है वो चीज़ें फ़रोख्त करना जो वो जायज़ है, इसीलिए जो वो चीज़ें फ़रोख्त की जाती है। लेकिन अगर जो है वो हमें मजबूर किया जाएगा कि अगर रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें बेची जाएँ तो नुकसान पर हम चीज़ें नहीं बेचेंगे, मजबूरन जो है वो दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। जी, रमज़ान से कबल पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची का बड़ा इक़दाम, यूनिवर्सिटी रोड पर रमज़ान सहूलत बाजार लगा दिया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी देखिए, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची की जानिब से रमज़ान सहूलत बाज़ार मेन यूनिवर्सिटी रोड के एक ग्राउंड पर लगाया गया है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के जो सदर हैं नदीम अमान साहब, हम उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। नदीम भाई, बड़ा ही ज़बरदस्त आप लोगों ने पिछले साल भी लगाया था, इस साल भी ये लगाया है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप लोग जो है वो स्टॉल लगाएं, किन किन चीज़ों के वो भी बताइएगा। और ये चीज़ें आप हर साल इस तरह लगाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि आपके इस बाज़ार से जो आवाम इस महंगाई के दौर में नहीं ख़रीद सकती उनको कितना फ़ायदा पहुँच रहा है? बहुत शुक्रिया। ये हमारा गुज़िश्ता साल भी कराची में 48 बाज़ार हमने इस तरह के लगाए थे, और आइडिया ये था कि हम लोगों को इंतहाई कम रेट के ऊपर चीज़ें फराहम करें। इसके लिए हमारी टीम ने मुख्तलिफ फैक्ट्री मालकान से, मिल मालकान से रब्ता किया और हमने उनसे कहा कि होल सेल से भी कम आप अपना प्रॉफिट छोड़ दें एक दिन के लिए और लोगों को ये सहूलत दें। अच्छा, उसका फ़ायदा ये हुआ कि बड़ी तादाद में वो चीज़ें जो मार्केट में होल सेल रेट से भी नीचे पे थी, तो ये सिलसिला हमने रमज़ानुल मुबारक में मुस्तकिल जारी रखना है। कराची के हर टाउन के अंदर हमारा इसी तरह का बाज़ार लगेगा और ये सिलसिला रमज़ान के आखिर तक, ईद बाज़ार तक हम इसको मुंतकिल करेंगे इंशाल्लाह। हमने कोशिश ये की है कि उसकी मकामी सतह पे तशहीर करें ताकि वहाँ पे जो लोग हैं बहुत दूर से किराया लगा के आना पहुँचना बिलखुसूस ख़वातीन के लिए मुश्किल होता है, तो उनके घर के करीब तरीन जगह हो जहाँ पे वो, कराची बहुत बड़ा शहर है, सबका एक जगह पे जमा होना मुश्किल है। तो एक तो हमने ये काम किया। इसके अलावा हमारे सस्ते सब्ज़ी बाज़ार, सस्ते तंदूर
और अभी कल एक और हम अपना सिलसिला प्रोग्राम करने जा रहे हैं रोज़गार स्कीम। उसके अंदर हमने ये किया है कि बेरोज़गार फैमिलीज़ के वो हमने स्क्रूटनी के बाद जो एप्लीकेशंस आई हुई थी हमने उसमें तय किया कि ऐसे लोग जो फौरी तौर पे फूड पांडा, बाइकिया या किसी और तरह से अपना काम शुरू कर सकते हैं तो उनको बिला सूद कंपनी रेट से भी कम के ऊपर हम बाइक्स फराहम कर रहे हैं जो किस्तों पे उसकी अदायगी करे। और अदायगी का मकसद ये है कि सिलसिला चलता रहे ताकि आइंदा मजीद बेरोज़गार फैमिलीज़ को भी जो है ना ये सहारा दिया जाए। ये काम हम कल इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ नदीम अमान मौजूद थे, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के सदर है। इनका ये कहना है ना सिर्फ यहाँ पर रमज़ान सहूलत बाज़ार में जो है वो मार्केट से कम रेट पे जबकि चीज़ें फ़रोख्त की जा रही है, जबकि इसके अलावा कल जो है वो एक रोज़गार स्कीम भी ये लेकर आ रहे हैं जिसमें जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार की तलाश के लिए जो है मोटरसाइकिल और रक्षा भी कल जो है वो स्कूटी के बाद दिया जाएगा। यहाँ पर वो तमाम चीज़ें। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद इमरान सोलंगी की प्राइस चेकिंग अशिया खुरनोश की ज़ायद कीमतें वसूल करने वाले दुकानदारों पर जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध के अहकामात जो है वो रंग ले आए हैं और ज़िले अफसरान जो हैं वो प्राइस कंट्रोल के हवाले से ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का उनकी जानिब से आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ नागन चौरंगी के इकबाल मार्केट से, जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद इमरान सोलंगी की निगरानी में जो है प्राइस कंट्रोल की चेकिंग की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा प्राइस कंट्रोल के हवाले से कब से आपकी कार्रवाइयाँ जारी हैं और अब तक की प्रोग्रेस क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि प्राइस कंट्रोल पे हमारे कमिश्नर साहब जो रेट्स नोटिफाई करवाते हैं हम उनको इन्फोर्स कराते हैं मार्केट्स में। ये बहुत अरसे से हम यही काम कर रहे हैं और ये हमारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। तो रमज़ान के हिसाब से जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पेशली नोटिस लिया है और मीटिंग की है, स्पेशल डायरेक्शंस हमें भिजवाई हैं और वही डायरेक्शंस हमें कमिश्नर साहब और डीसी साहब से पास ऑन हुई हैं। तो कल से ही हम मार्केट्स में आ गए थे सारी, जहाँ पे भी हमें कोई कंप्लेंट मिल रही है और हम खुद भी जा रहे हैं, सबको वार्न भी कर रहे हैं, रेट इन्फोर्स करा रहे हैं। पब्लिक का कहना यह है कि आप जब आते हैं उस वक्त तो रेट कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही अफसरान वापस जाते हैं तो फिर जो है वही मनमाने नर्क की वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। डिमांड ये की जा रही है कि यौमिया बुनियाद पर इस किस्म की कार्रवाई की जाए, खासतौर पर रमज़ान में। क्या कहेंगे इस पर आप? सर बिल्कुल, इसमें रमज़ान में हम रोज़ की बुनियाद पे करेंगे और एक बार भी नहीं 2-3 बार दिन में निकलेंगे, मार्केट्स में हम बैठेंगे और हम अपनी निगरानी में जो गवर्नमेंट रेट्स पे अशिया की ख़रीदो फरोख्त करवाएंगे और वहीं पे मौजूद होंगे। इंशाल्लाह रमज़ान में हम ये सारे रेट्स इन्फोर्स कराएंगे, वरना हमारे कंप्लेन नंबर सारे हमारे आवाम के पास हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी वायलेशन हो रही है तो वो हमें उसी वक्त इन्फॉर्म कर सकते हैं और हम रैपिडली एक्शन लें। अब तक जो आपने कार्रवाई की है उसमें कितनी वायलेशन पाई गई? काफ़ी कम हो गए वायलेशंस। कल जैसे कि रमज़ान करीब आ रहा है तो कुछ रेट्स वगैरह, कल मैं निकला था मार्केट में हैदरी की तरफ, 1 लाख रुपए तक कल फ़ाइन किए थे हमने। 12-13 शॉपकीपर्स को फ़ाइन किया था और 10-15 को हमने वार्निंग्स भी दी थी। अभी हम निकले हैं, थोड़ी देर तक 40-50 हज़ार रुपये फ़ाइन कर चुके हैं हम लोगों को और अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम ये सारी मार्केट्स घूमेंगे और जिनको वार्न करेंगे, जो वायलेटर्स बहुत ज़्यादा हैं उनको हम फ़ाइन भी करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो दुकानें सील करेंगे और जेल भी भिजवाएंगे। बिल्कुल, आवाम की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि अगर इस किस्म की कार्रवाइयाँ यौमिया बुनियाद पर और खुसूसन रमज़ानुल मुबारक में अगर की जाएँ तो अब यकीनन रिलीफ मिलेगा। जी इब्राहिम हैदरी के करीब कश्ती डूबने का वाक़या पेश आया। 2 रोज़ गुजरने के बावजूद 14 अफराद लापता है। लवाहिकीन अपने प्यारों की वापसी की आस लिए जामोद जेटी पर पहुंच गए हैं। कहते हैं बहुत परेशान है, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो है वो इब्राहिम हैदरी के करीब जो है कश्ती डूबने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 31 माहीगीरों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 14 माहीगीर जो हैं वो ताहाल लापता हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी में जामोद जेटी पे। यहाँ पे जो है वो 14 अफराद लापता हैं। उनके लवाहिकीन जो हैं वो अपने प्यारों के लिए यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, अपने प्यारों की आस लिए यहाँ पे जो है वो सुबह से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ से ये सिलसिला जो है वो इसी तरह से यहाँ पे जारी है। हमारे साथ जो है वो कुछ लवाहिकीन मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। हमें बताइएगा आपका कौन गया हुआ है और कब से ये काम कर रहे हैं? ये हम तो कर रहे हैं तकरीबन 3-4 साल से ये काम कर रहे हैं। तो अब हमें नहीं पता कि अचानक रात में ये हादसा होगा। अचानक हवा स्टार्ट हुआ है, पानी तेज़ हो गया तो हम लोग आ रहे थे। जब इस साइड में हम लोग रवानगी हुए
तो दूसरे किश्ती भी वहाँ पर बंद पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने उसको छेड़ा लगा के उसको भी खींचे। तो किश्ते आधे रास्ते में जब उसके पानी ज़्यादा बढ़ चुके थे तो उन्होंने बाल्टी भर के पानी फेंक रहा था, तो हमारे किश्तियों में बस नहीं होता, तो हम लोगों ने उनका चढ़ा। अच्छा, आप भी उस कश्ती में मौजूद थे और अभी आपका कौन जो है वो लापता है? हमारे भांजा लापता है। आप उस कश्ती में थे? नहीं, उसमें नहीं थे, हम दूसरे में थे, लेकिन ये कश्ती दूसरा जो मेरे भांजा गया हो। हमारे साथ और भी लवाहिकीन मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। आपका कौन गया हुआ है, कौन प्यारा गया हुआ है कश्ती में और कब लापता हैं, तो अब कितनी उम्मीद है आपको कि वो जो है वो वापस आएंगे? तकरीबन अभी ढूंढने के लिए गए हुए, अभी अल्लाह करे उन लोग को मिल जाए, उसी की इंतज़ार में हम लोग बैठते हैं, रोज़ यहाँ पर आ जाते हैं। गया हुआ कौन है कश्ती में? मेरा बड़ा भाई गया हुआ है, उसको तलाश करने के लिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जो हैं वो लापता अफराद के जो लवाहिकीन हैं वो मौजूद थे। इनका यही कहना है कि किसी का भाई गया हुआ है तो किसी का भांजा गया हुआ है। एक अफसोसनाक हादसा जो है वो पेश आया, कश्ती डूब गई। 31 अफराद को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 14 अफराद जो हैं वो 2 रोज़ गुजरने के बावजूद भी ताहाल लापता हैं। यहाँ से जो माहीगीर हैं उन्होंने अपनी मदद आप के तहत जो है वो कल यहाँ से मकामी माहीगीरों की कश्ती भी यहाँ से रवाना की है और वो कश्ती भी जो है वो ढूंढने गई, लेकिन ताहाल जो है वो इस मामले पे कोई पेशरफ नहीं हुई है। जी, कराची में 3 रोज़ा इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री एक्सपो जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आयास राना से। जी बिल्कुल, जो 20वीं जो है ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर जो है इस वक्त कराची एक्सपो में जारी है। मेरे साथ जो है वो कराची चैम्बर के सदर हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं, ज़रा उनसे ही जान लेते हैं। सर, ये फेयर दोबारा से यहाँ पर एक इनेकाद हो रहा है, एक के बाद एक, कैसा देखते हैं इंडस्ट्री जहाँ हमारी बड़ी ज़बरहाली की शिकार, आपसे ही हमारी बहुत सारी बातें होती हैं, तो कैसा समझते हैं जब इंटरनेशनली लोग आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ में नज़र आती है, क्या कहिएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इनकी 20th है एग्जीबिशन, और ये मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो कारोबारी हालात है, डेफिनेटली मईशत की जो है इस वक्त सही हालत नहीं है, उसके अंदर मैं ये बहुत ज़रूरी है कि इस किस्म की एग्जीबिशंस हो और लोगों को नई नई टेक्नोलॉजीज़ का अवेयरनेस हो और लोग ये समझ सकें कि जी ये जो प्रोडक्ट्स इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई हैं इलेक्ट्रिक के हिसाब से, सोलर्स की प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, नई नई कंपनियाँ, चाइनीज़ काफ़ी कंपनियाँ यहाँ पर अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत खुशाइन बात है। एग्जीबिशन हमेशा भी कारोबार को बूस्टअप करती है और इस किस्म की एग्जीबिशन जहाँ पर नई टेक्नोलॉजी की भी, नई प्रोडक्ट्स भी दिखाई जाए, मैं सही समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला आज पहला दिन है, ये आगे 3 दिन में यहाँ पर काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे और ये इसमें जो प्रोडक्ट्स लगाई गई हैं वो बहुत शानदार और बहुत नई टेक्नोलॉजी की हैं और इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान की कारोबार के अंदर एक संग मील साबित हो सकती है। सर, सी पैक को लेके बड़ा पिछली गवर्नमेंट में बात हो रही थी कि सी पैक एक अच्छा तासुर नहीं गया जो जाके रुकना चाहिए था। अब अगला फेस है इंडस्ट्रीज़ का आना और नए, तो क्या समझते हैं सी पैक अब नई गवर्नमेंट जो आ रही है उसका फोकस होना चाहिए, तो कराची को कितना सपोर्टिव होगा जो ये गवादर पोर्ट बन जाता है और सी पैक का जो? देखिए जी, सबसे पहले तो मुझे ये गवादर के नाम पर मैं अफसोस करता हूँ, जिस किस्म का वहाँ डिज़ास्टर हुआ है, बारिशों ने वो उधर जो तबाही मचाई है, अल्लाह ताला लोगों को भी महफूज रखे। कराची चैम्बर उनके साथ खड़ा है और हम कराची चैम्बर के तवस्सुत से एक इमदादी पैकेज भी हमने वहाँ पर रवाना किया है और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो साथी हैं पाकिस्तानी हैं ग्वादर के अंदर, वो उनकी हम जितनी मदद कर सकें। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि बलूचिस्तान में जो बारिशों से तबाही हुई है उसके अंदर वो भी हिस्सा डालें। हम कराची चैम्बर इसके अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला काम करते रहेंगे। थैंक यू। जैसे इफ्तिखार अहमद शेख जो कि कराची चैम्बर के सदर हैं, वो एक्सपो के अंदर आए हैं, वो डिफरेंट स्टॉल्स का जो है वो जाके उन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। उनका कहते हैं इस तरह की एक्सपोज जो हैं वो बहुत इंतहाई ज़रूरी हैं, जहाँ हमारी इंडस्ट्री के लिए ख़ास करके कि नई टेक्नोलॉजी आए ताकि उससे लोग मुतारिफ भी हों, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को इस वक्त शदीद ज़रूरत है कि उसके अंदर नई जिद्दत आए और ताकि जो इंडस्ट्री का पहिया है वो चलता रहे और चल सके। और नई हुकूमत के हवाले से कहना है कि सी पैक को लेके वो एक गेम चेंजर है और नई हुकूमत से उम्मीद है कि वो उसको अब मज़ीद आगे की तरफ लेके जाएगा। जी।